हेलो फ्रेंड्स, इन टूडेज़ क्लास वी विल स्टडी अबाउट राइबोसोम्स। सो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स आर टीनी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे विदाउट मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ड्यू टू दिस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल एंड इसी वजह से उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं सेल की। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। Ribosomes are small spherical granule made up of ribonucleoprotein. They are small granules which are somewhat spherical in shape and they are made up of ribonucleoprotein. Each ribosome has two subunits. हर राइबोसोम के पास टू सबयूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सबयूनिट एंड अनदर इज स्मॉलर सबयूनिट एंड ये जो सबयूनिट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ RNA दैट इज राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन. It has two subunits, larger subunits and smaller subunits and both the subunits are made up of rRNA and protein. Eukaryotes में two sizes of ribosomes are found, 80S ribosomes and 70S ribosomes. In 80S ribosomes, larger subunit is 60S and the smaller subunit is 40S. And these subunits are found in cytoplasm and on rough endoplasmic reticulum. And second is 70S ribosomes. 70S ribosomes जो होते हैं उसमें 50S larger subunit होती है और 30S ribosomes की smaller subunit होती है. And 70S ribosomes यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और प्रोकैरियोट्स में फाउंड होते हैं. Okay. This is the diagram of ribosomes. In this diagram, this is a large ribosome subunit and the upper green portion it represents large subunit of ribosome and it is responsible for the forming of peptide bond between amino acids. These are amino acids and it help in the elongation of the growing protein chain. ये जो growing protein chain है इसके elongation में ये help करता है. And this is small ribosomal subunit. It help in binds to mRNA and read its codon during translation. ये codon को translation के process में read करने में help करता है. And this is mRNA. It is the blue strand passing through the ribosome and that is mRNA. mRNA जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है DNA से और ये जिस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है उसे कोडॉन कहते हैं. जो राइबोसोम है इट मूव्स अलोंग द mRNA in 5' to 3' डायरेक्शन and here it is tRNA also called as transfer RNA. Each tRNA carries specific amino acids and it has an anticodon. जो एंटीकोडॉन्स होते हैं दे पेयर विद द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन mRNA. नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स. हियर वी कैन सी द येलो स्फेयर एट द टॉप. इट इंडिकेट्स एन अमीनो एसिड विच इज ब्रॉट बाय tRNA. अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन. दिस इज ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन. इट इज द चेन ऑफ colored sphere. As we can see, it is the chain of colored sphere emerging from the ribosome represent growing polypeptide chain. जैसे जैसे राइबोसोम्स मूव करता है along mRNA, अमीनो एसिड जो होते हैं वो दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड थस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. सो जो ये डायग्राम है इट इज़ इलिस्ट्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन वेयर राइबोसोम जो है इट सिंथेसाइज प्रोटीन बाय डिकोडिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन mRNA विद द हेल्प ऑफ tRNA. नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल. दो तरीके के लोकेशन वाइज दो तरीके के राइबोसोम्स पाए जाते हैं. पहला है फ्री राइबोसोम्स और दूसरा है बाउंड राइबोसोम्स. जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं दे आर स्कैटर्ड इन सेल इन साइटोप्लाज्म and free ribosomes synthesize protein that are used inside the cell. Free ribosome are scattered in the cytoplasm and they are used for the synthesis of protein that are used inside the cell. And दूसरे जो होते हैं they are bound ribosomes. Bound ribosomes are attached to RER. Bound ribosomes are attached at the surface of rough endoplasmic reticulum. Bound ribosomes जो प्रोटीन बनाते हैं they are secreted outside the cell, inserted in membranes or sent to other organelles. They are also present in mitochondria and chloroplast. Now we will discuss about the composition of ribosomes. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% RNA. राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें 60 to 70% rRNA होते हैं एंड 30 to 40% प्रोटीन होती हैं. एंड जो rRNA होती है वो स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल कैटालिटिक कोर बनाता है राइबोसोम का और जो प्रोटीन होती है दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं. दे आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स रीड द जेनेटिक कोड फ्रॉम mRNA. जो राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA से जो भी जेनेटिक कोड होते हैं उसको रीड करते हैं और असेंबल करते हैं अमीनो एसिड में करेक्ट सीक्वेंस में सो दैट दे कैन फॉर्म प्रोटीन. एंड दे आल्सो हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. लार्ज सब यूनिट में जो rRNA होते हैं दे एक्ट एज राइबोजाइम एंजाइम एंड कैटेलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. थर्ड यूज़ है इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर. राइबोसोम्स आर वेरी हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ सेल एंड रिपेयरमेंट ऑफ सेल.
राइबोसोम्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करके, वो प्रोटीन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस में, दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द सेल। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। राइबोसोम्स होते हैं वो एंजाइम के प्रोडक्शन में और स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज़ एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये हेल्प करते हैं एंजाइम के सिंथेसिस में, हार्मोन के सिंथेसिस में, एंटीबॉडी सिंथेसिस में और डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन के सिंथेसिस में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में फाउंड होते हैं। उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये जो साइज होती है, ये इनकी साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, अप्रॉक्स 20 to 30 नैनोमीटर। एंड दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल राइबोसोम। ये सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब ये ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, एंड दे आर हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ मेनी प्रोटीन साइमल्टेनियसली। मतलब ये एक साथ बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप। नाउ लुकिंग एट द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ विदाउट राइबोसोम। बिना राइबोसोम के लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है, बिकॉज इफ देयर विल बी नो राइबोसोम, देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड thus every other body processes will get affected। जो राइबोसोम